आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जारी है और आखिरी मराहिल जो है वो भी जारी हैं। तकरीबन जो है वो कुछ मैचेस रह गए हैं शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, कल का दिन और परसों का दिन, 4 मैचेस बाकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत कुछ हो रहा है। हमारे 5-6 टीम, पाकिस्तान सुपर लीग की 6 टीमों के अलावा यहाँ पे एक 7वीं टीम भी यहाँ पे है, और उस 7वीं टीम से मैं आज मिलवाने वाला हूँ 7वीं टीम के कप्तान राहिम परदेसी से। साहिवाल सल्यूट टीम यहाँ पे खेल रही है। उस टीम के जो मेंबर हैं, उस टीम के जो कप्तान हैं राहिम परदेसी, आप सबके फेवरेट हैं, कौन नहीं इनको जानता। वो परदेसी साहब भी यहीं पे हैं। आज उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला है। आज उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला है और इतना बड़ा उनको चेक भी मिला है। हम देखते हैं कि जो है वो उनको जो है वो जो चेक मिला है वो इसका चेक का क्या करेंगे। राहिम परदेसी सलूट साहिवाल के कप्तान भी हैं और आज के मैच में जो है वो इनको मैन ऑफ द मैच मिला। और आप देख सकते हैं कि ये चेक कितना बड़ा, इन्होंने चेक भी पकड़ा हुआ है, $4,500। वो इधर चाचा छामा भी है जी, ये है इनको आज चेक। इनको किस चीज का चेक? $2,500। वो पहले चाचा जी से पूछते चले, उनका तो पता है मैन ऑफ द मैच है, इनको किस चीज का चेक मिला? चाचा जी, ये चेक आपको कैसे मिला? बस जी शो शाह वास्ते जी। अच्छा, सिर्फ शोशा वास्ते? हाँ जी, और साਡਾ खर्चा भी तो होना चाहिए ना जी। पूरा हो गया आन जान का खर्चा 2,500? ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ। अच्छा, अब हम चलते हैं राहिम परदेसी की तरफ। परदेसी, क्या हुआ आज? मैन ऑफ द मैच मिला, इतने छक्के चौकों की बारिश, पूरा स्टेडियम परदेसी कर रहा था। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ। ਚਾਚਾ ਛਾਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਿੰਡੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਾਸਤੇ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ $45,500 ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣੀ? ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਬਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? $2,500 ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੌਜਾਂ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ, ਤੇ $2500 ਮੌਜਾਂ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫੁਹਾਰੇ ਸ਼ਵਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। मतलब कि ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਜੀ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। परदेसी ਦੀ परफॉर्मेंस आज किस तरह दी लगी? हर तरफ छक्के चौकों की बारिश और नारे परदेसी के। साहिवाल सलूट और अपने पिंड ਦਾ ਫਖਰ ਸਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਚਾ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਲੂਟ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਹੋ ਪਿੰਡੋਂ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਲੂਟ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਲੂਟ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਲੂਟ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਰਦੇਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਲੂਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁੱਡੂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਦੁਬਈ 'ਚ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮौज ਮੇਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮौज ਮੇਲਾ ਸਿਰਫ ਨਸਰੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮौज ਮੇਲਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਰੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਲੂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਪ ਸ਼ੰਪ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ।
अच्छा मेरा ख्याल थोड़ा कैरेक्टर तो बाहर आ चल सर, नाज़रीन आपने देखा राहिम परदेसी जो है परदेसी के करेक्टर में थे और हमारे साथ मौजूद हैं चाचा छामा। आप इनको इनकी वीडियोस में और ड्रामाज में अक्सर देखते हैं। ये एक स्पेशल करेक्टर है, गांव में भी नजर आता है और भी बहुत से ड्रामाज में बहुत सी वीडियोस में आपको नजर आता है चाचा छामा के करेक्टर में। हम इनसे बात करेंगे पहले परदेसी की तरफ जाने से पहले, क्योंकि उनसे तो होती रहती है बात। इनके बारे में जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये भी माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड है और इनकी एक्टिंग का क्या ही कहना है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप, तो क्या कहेंगे कहाँ से ये टैलेंट और स्पेशली परदेसी टीम का हिस्सा हैं आप? दरअसल बात यह है कि जी ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जो मेरे अंदर से ट्रांसफ़र हुई हैं इनके अंदर जेनेटिकली। तो बेटे मेरे ने कहा जी कि पापा जी आपने तो कभी ये काम किया ही नहीं है, मैंने देखा नहीं है, तो आप मेरे अंदर ये जरासीम कैसे आ गया? तो मैंने कहा बेटा जब मैं भी 16-18 था ना, तो अंदर बंद करके अपने आप को तो शीशे में देख के एक्टिंग किया करता था। तो उस वक्त अच्छा, से ये स्टार्ट से ही है, मतलब ये थोड़ा सा आप कहते हैं ना वो एक्टिंग का कीड़ा स्टार्ट से ही था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उस वक्त हमारे पास एक कैमरा होता था, बड़ी तस्वीरें वगैरह बनाया करते थे। तो उसके बाद फिर एक्टिंग का भी बड़ा शौक था। पहली दफा कब कहा राहिम ने कि नहीं जी हमने ये काम करना है, ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये मेरा स्क्रिप्ट है और आपको मैं उस स्क्रिप्ट में लेके आना चाह रहा हूँ? पहली दफा कब हुआ, कैसे ये इंसिडेंट हुआ? ये जब हम इंग्लैंड से वापस आए पाकिस्तान में, तो उस वक्त जो है ना बिजली बिजली इधर भी जाती है। पर राहिम लाइट चली गई है और आप देख सकते हैं नाजरीन शारजा क्रिकेट स्टेडियम में हम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की जो क्योंकि मैच खत्म हो चुका है, सेरेमनी भी खत्म हो चुकी है, लोग जा चुके हैं, लेकिन परदेसी और परदेसी की टीम और पाकिस्तानी माहौल यहाँ पे बन चुका है। लाइट्स स्टेडियम की ऑफ हो चुकी हैं। चाचा जी कैरी ऑन, क्या कहेंगे, मतलब कि थोड़ा सा बता दें, थोड़ी सी लाइट है हम नाजरीन कहना चाहूँगा कि बिजली जाने से मुझे पाकिस्तान याद आ गया। पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान पाइंदाबाद है। मेरा बच्चा जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए ही मैं इनको लेके आया हूँ पाकिस्तान में। वैसे तो ये माशाल्लाह बॉर्न तो इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन दिल इसका पाकिस्तान में ही है। तो इंशाल्लाह ताला जितनी अच्छी पंजाबी बोलते हैं, यूके बॉर्न हैं और वहीं पे पले बड़े हैं, लेकिन जितनी अच्छी पंजाबी माशाल्लाह, कैसे इतनी अच्छी तरबियत और अपना कल्चर और अपना वो पेंडूपन वो नजर आता है। असल में बात यह है कि हमने बाहर यूके में रह के भी अपने घर को ना वलैती माहौल में नहीं डाला। हमने वहाँ रह कर भी पंजाबी को नहीं छोड़ा, पंजाबी माहौल अपनाया और इनको फुल पंजाबी माहौल में रखा, और इसलिए इनको पाकिस्तान लेकर आए और पाकिस्तान में ला के इनको रखा और दिखाया पाकिस्तान को, और इन्होंने पसंद किया। खुदा का शुक्र है कि ये पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों को पसंद करते हैं, पाकिस्तान के कल्चर को पसंद करते हैं, भावें बिजली आवे या ना आवे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। परदेसी राहिम आप क्या कहोगे? स्पेशल अंकल आए हैं, आज ही शायद पहुंचे हैं या कल आए हैं, इस पूरे क्या क्या कहोगे इस पूरे सिनेरियो में? जी फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पता है कि वालदैन की सपोर्ट की वजह से बड़ा फ़र्क पड़ता है, और इनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज इधर पहुंचा हूँ इस मुकाम तक, इनकी दुआओं की वजह से। सो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स, माय फैमिली who have supported me throughout, and as like my father said, you know, he's a very special father. He's always supported me from day one, and he's always taught us how to treat our religion and our traditions, और वो जैसे पंजाबी उर्दू सब इन्होंने सिखाई है। सो all the credit goes to him, और अभी भी वो स्पेशली दुबई आए हैं सपोर्ट करने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। राहिम, मैंने अंकल से भी पूछा, वो पहला इंसिडेंट जब आपने पहली दफा इनको अंकल को कहा कि नहीं अब्बा जी मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैंने ये मेरा स्क्रिप्ट है, मैं ये एक एक्ट करना चाह रहा हूँ, एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, कोई जुतियां शुतियां या कुछ कैसा रिएक्शन आया था इनकी तरफ से? नसरीन ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, but when he saw obviously because it's just a character that I play, एक्टिंग का काफ़ी शौक था, जैसे उन्होंने कहा कि फिर जब उन्होंने रिस्पांस देखा, पॉजिटिविटी देखी लोगों की तरफ से, देन फिर वो उनको थोड़ा एहसास हो कि नहीं यार ये बड़ा लोगों में खुशियाँ बांटना भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। बिल्कुल। अंकल जी लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपको ज्यादा नसरीन से प्यार है या परदेसी से? जी
देखें जी, बेसिकली मैं तो यही पसंद करता हूँ कि मेरा परदेसी जो है ना, ये जिंदा रहे, आबाद रहे, खुशहाल रहे। और नसरीन तो एक वैसे ही, मतलब कभी लेकिन कभी फैन ज्यादा नसरीन के हैं। फैन तो ज्यादा नसरीन के ही हैं, लेकिन क्या करें, आप काम काम भी तो चलाना है कि नहीं चलाना। बादल क्योंकि जी। ज्यादा काम नसरीन चलाती है, परदेसी कम चलाता है। नहीं, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਸਰੀਨ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਪਰਦੇਸੀ, ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जारी है, बहुत बड़ा जो है वो एक ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के इतने बड़े ब्रांड के साथ, इस सुपर लीग के साथ राहिम काम कर रहा है। पहले दिन से हम देख रहे हैं अपने एपिसोड्स, और बड़ा स्ट्रगल, और ग्राउंड में जब भी हम आते हैं एंड पे, क्योंकि थ्रू आउट हम भी यहीं पे हैं, और इतनी मेहनत हमें नजर आती है कि वाकई राहिम मेहनत करता है। कितना प्राउड फील होता है, स्पेशली जब ऐसा बच्चा जो है वो एक पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान का सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान के नाम को ऊंचा करने के लिए काम कर रहा है। बात यह है कि सर, काम अच्छा होना चाहिए, लोगों को एंटरटेन करना चाहिए, किसी को हिट नहीं करना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो इसको पीएसएल के लिए मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले जो है सालों में, पीएसएल को फुल सपोर्ट करना चाहिए। और ये क्रिकेट हम ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये बैक टू नॉर्मल होनी चाहिए, ये लीग हमारे अपने मुल्क में होनी चाहिए। ये ख्वाब मैं ज़िंदा करके रहूँगा, और मेरा बेटा भी इंशाल्लाह ये ख्वाब को ज़िंदा करेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। राहिम, लास्ट मैसेज आपकी तरफ से। आपने पीएसएल तकरीब चूंकि आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, 1-2 दिन रह गए हैं, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, कितना आपने एंजॉय किया थ्रू आउट? पहले आप ओपनिंग में भी थे, कितना एंजॉय किया थ्रू आउट आपने पूरे पीएसएल? मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मेरे एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। पर जैसे कि मेरे फादर ने कहा है कि आई होप इंशाल्लाह अगले साल और वेन एवर कि एक दिन ये पाकिस्तान में ज़रूर आए, बिकॉज दिस इज़ आवर आवर बेबी, सो इट शुड बी इन आवर कंट्री। सो इंशाल्लाह दुआएं हैं कि ये पीएसएल ऐसे ही चलता रहे, और इंशाल्लाह हम ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राहिम परदेसी और अंकल जी उर्दू पॉइंट के साथ बात करने के लिए। नाजरीन, आपने सुना राहिम परदेसी का छक्का जो है वो ड्रामे के कैरेक्टर में भी थे, और अंकल उनके फादर हमारे साथ थे, जो चाचा छामा के कैरेक्टर में आप उनको देखते हैं। आपने उनकी बात सुनी, वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, और स्पेशली उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पूरे लीग को, पाकिस्तान सुपर लीग को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, जो कि ख़त्म हो रही है, और वो भी साथ ही पाकिस्तान जाएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।